So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hasta Education. So in this video I am going to discuss about the algebra of differential functions. Alright, so let's get started. So our today's topic is algebra of differential functions. Alright, algebra of differential functions. So this is our today's topic. Okay, so let's see the case number 1. Alright, so in case number 1, let's say I have two functions f of x and g of x. Okay, and both are differentiable at x is equal to a. Okay, if both f of x and g of x are differentiable at x is equal to a. Alright, both f of x and g of x are differentiable at x is equal to a. Okay, then point number a, c into f of x. Okay, some constant into f of x, or we can say that some another constant k into g of x. Okay, that will be also differentiable at x is equal to. Okay, so some constant multiplied by a differential function is also a differential function. Okay, their summation or difference, okay, is also a differentiable function. Okay, differentiable at x equal to a. Similarly, you can say that c1 times of f of x plus or minus c2 times of g of x is also differentiable at x is equal to a. Alright, then their product, okay, f of x into g of x, it is also differentiable at x equal to a. Alright, and next comes their product, okay, that is f of x by g of x differentiable at x is equal to a, but provided g of a is not equals to 0. Okay, so if I have two differential function, then the constant time of differential function will be also a differential function. The summation or difference of two differential function will be a differential function. Similarly, c1 f of x plus or minus c2 g of x will also be a differential function, and the product of two differential function will also be differentiable. Okay, and the division is differentiable provided, okay, numerator is not equal to 0 at that point. Okay, so this is the case number 1 when both the functions are differentiable at x equal to a. Alright, so let's see the case number 2. So in case number 2, let's say your f of x is differentiable at x equal to a,
but g of x is non-differentiable at x equal to a. Alright, so we have two functions f of x and g of x. F of x is differentiable at x equal to a, and g of x is not differentiable at x equal to 0, x equal to a. Alright, so now let's see. So the point number 1, okay, f of x plus g of x, okay, their summation, okay, f of x plus g of x, okay, this will be non-differentiable at x equal to, okay. So if I have two functions, one is differentiable and another one is non-differentiable, then their summation will be non-differentiable at x equal to a point, okay. The point number 2, that is their difference, okay. So f of x minus g of x, okay, this will also be non-differentiable at x equal to a. Alright, point number 3 says that nothing can be said about f of x and f of x multiplied by g of x and f of x by g of x. Right, so we cannot say anything about the product and the division, okay. So but we can say about their summation and their difference, okay. So we can say that differentiable function, okay, differentiable function plus or minus non-differentiable, okay, that will be your non-differentiable, okay. So let's see the case number 3. So let's say both the functions are non-differentiable, okay, non-differentiable at x equal to a and g of x, okay, this is also non-differentiable at x equal to a, okay. That means both the functions are non-differentiable at x equal to a, okay. Now at most one of, okay, f of x plus g of x or f of x minus g of x will be differentiable, okay. At most one of f of x plus g of x or f of x minus g of x, okay, will be differentiable, okay. That means both cannot be differentiable, okay. Both cannot be differentiable, okay. So either it may happen that both are non-differentiable, okay,
or at least or at most one of them is differentiable. Okay, there is only two possibility. Okay, so either this is differentiable or this is differentiable, or both of them are non-differentiable. Okay, so both of them cannot be differentiable simultaneously. Okay, both of them cannot be differentiable simultaneously. Okay, so either both of them can be non-differentiable, or at most one of them is differentiable. Okay, the point number 2 says that we can't say anything about product function and डिवीजन फंक्शन. ओके, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मेरे पास दो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है तो इधर समेशन में से एक या फिर डिफरेंस में से एक ही डिफरेंशिएबल हो सकता है. कि जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होना है. कि अगर डिफरेंशिएबल हो तो फिर एक ही हो सकता है. कि दोनों डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली. कि या तो फिर दोनों की दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो, ये हो सकता है, या फिर ओनली वन इज डिफरेंशिएबल. ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है, बोथ नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल हो, ये हो सकता है, या तो फिर ओनली वन इज डिफरेंशिएबल. ओके, यही दो पॉसिबिलिटी है कि इस केस में. ओके, और हम प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में कुछ भी हम नहीं बता सकते. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ओके, तो आइए कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखते हैं. तो मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स. और एफ ऑफ एक्स ये है, मान लेते हैं डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है. ओके, और जो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो कहाँ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. ओके, अगर इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, ये जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन, तो हम ये बोल सकते हैं, सो यू कैन से दैट द कंपोजिट फंक्शन दैट इज जी ऑफ एक्स. ओके, जी ऑफ एक्स that will be differentiable at x equal to a. राइट, अगर मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर होना चाहिए, और ये जो जी ऑफ एक्स, ओके, ये कहाँ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए वाला पॉइंट में अगर डिफरेंशिएबल है तो हम बोल सकते हैं जो जी ओ एफ, ओके, गॉप ऑफ एक्स, ये कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा. राइट, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2. A function of functions. Okay, a function of functions, okay, which is composed of finite number of differentiable function. Okay, is also differentiable. A function of functions, function का functions, okay, जिसमें which is composed of finite number of differential functions. Okay, तो ऐसा फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है. ओके, तो आइए और एक पॉइंट देखते हैं. तो मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, ये मान लेते हैं डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग टू ए टू बी पे डिफरेंशिएबल है मान लेते हैं. ओके, और ये जो जी एफ एक्स है ये कहाँ डिफरेंशिएबल है,
ए से बी के इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। ओके, और ये जो ए से बी है ये क्या है, मान लेते हैं ये रेंज ऑफ एफ है। ऑलराइट, अगर ये है तो हम बोल सकते हैं जब एक्स वाला जो फंक्शन होगा ना, इट विल बी डिफरेंशिएबल ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ ए टू बी। ओके, एक से बी तक का जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स में ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा। ओके, अगर ये जो एफ ऑफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। ओके, ऑल पॉइंट्स ऑन ए टू बी के इंटरवल में सारे पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। और ये जी एक्स वाला जो फंक्शन ये डिफरेंशिएबल ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ ए टू बी। ओके, और ये जो ए टू बी जो है ये रेंज ऑफ अगर एफ है तो हम बोल सकते हैं ये जो जी एफ एक्स वाला फंक्शन है डिफरेंशिएबल ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ ए टू बी। ओके, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, ये सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और जे एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये जो समेशन है या फिर डिफरेंस जो है ये भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ओके, या फिर उनका जो प्रोडक्ट है ओके ये भी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होगा। ओके, उसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर मान लेते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन तो हम बोल सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स के पावर पी का जो मॉड है ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, प्रोवाइडेड पी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऑलराइट, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, तो डिफरेंशियल फंक्शन का पावर पी का होल मॉडुलस अगर ले जाए तो दैट विल आल्सो बी अ डिफरेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड पी इज ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, सिमिलरली मान लेते हैं एक डिफरेंशियल फंक्शन है मेरे पास, उसके अगर मैं ओके 1/n पावर ले जाऊँ। ओके, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स ओके where it is 0। तो ये जब तक 0 नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल होगा। राइट, सो आइए एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऑलराइट, तो मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी एफ एक्स। मान लेते हैं मेरे पास दो फंक्शन है। ओके, डिफाइंड ऑन an interval okay defined on an interval containing x इक्वल टू ए। ओके, दोनों फंक्शन एक ऐसे इंटरवल में डिफाइन है जिसमें दोनों x इक्वल टू ए पॉइंट कंटेन कर रहा है। अगर एफ जो है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए पे होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, और जो फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए वो 0 है। और ये जो g वाला फंक्शन है ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर इतना हो गया ओके, ये जो एफ है वो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, प्लस फंक्शनल वैल्यू 0 होना चाहिए, और जो जी फंक्शन है उसको कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल टू ए पे। अगर ये हो गया तो हम बोल सकते हैं एफ का जो
प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, ये कैसा हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। मान लेते हैं कुछ फंक्शन है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये मान लेते हैं एफ, ये मान लेते हैं जी। ओके, ये जो एफ वाला फंक्शन दैट इज एक्स, ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो है और ये खुद जीरो है, 0 पॉइंट पे जीरो है ऑलराइट, और ये जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो टोटल फंक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, जो पहला फंक्शन होना चाहिए वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, प्लस उसी पॉइंट पे उसका फंक्शन वैल्यू जीरो होना चाहिए, और सेकंड फंक्शन को सिर्फ उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, so that's it for this video. Thank you for watching this video.